Hello everyone, let's start the question. The question says that in the reaction of oxalate with permanganate in acidic medium, the number of electrons involved in producing one molecule of CO2 is. So here we have to find out the electrons involved in for producing one molecule of CO2 only. So what we are going to do, firstly we are going to write down the reaction. The reaction is of permanganate with the oxalate. So what is permanganate? It is nothing but MnO4 negative, which is reacting with the oxalate, which is C2O4 2 negative in acidic medium, that means in presence of H plus ions. So MnO4 negative is getting reduced to Mn2 plus, and CO2 is being produced here, and water is also getting released. Now the next step is what? Finding out the oxidation number. So here the oxidation number of manganese would be what? X plus 4 into minus 2 equal to minus 1. So the value of X is coming out what? Minus 1 plus 8 plus 7. Similarly we are going to find out here oxidation state 2x plus 4 minus 2 equal to minus 2. The value is coming out to be minus 2 plus 8, which is 6. X is equal to plus 3 here, right? And then how many H plus ions, and then we have Mn2 plus with plus 2 charge. Here we have carbon with its oxidation state plus 4. So what we need to do is balance out the reaction. So let's balance the reaction. 2 molecules here, 5 molecules of C2O4 2 negative, 16H plus, Mn2 plus is balanced now, and 10 CO2 with 8H2. So now the reaction is completely balanced. If you see here, what we can observe here, that in this particular reaction, how many electrons are involved? For 10 moles of CO2, we require 10 electrons. How I said that we require 10 electrons? If you find out the n factor of MnO4, what is the n factor of MnO4? The n factor of MnO4 negative here is equal to 2, because 2 moles is required here. Now what is the n factor of C2O4 2 negative? It is equal to 5. So the total electrons is equal to how much? 5 into 2 is how much? 10. So that means 10 electrons are involved in this particular reaction for giving out 10 moles of CO2. If 10 electrons is required for 10 moles of CO2, that means 1 electron will be required for producing 1 mole of CO2. So our answer would be 1 electron required for 1 molecule of CO2. Thank you. क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड CXHYOZ इज 6:1. तो देखो मास परसेंट दे रखे ना इसने, तो कार्बन का बेसिकली, तो इसमें कार्बन का C का मास कितना होता है? 12 यूनिट. इसका H का बेसिकली 1, तो हम क्या लिख सकते हैं एज 12x अपॉन 1 इंटू वाई की वैल्यू गिवन है 6/1 के. तो ये देखो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है या रिलेशन आती है कि जो 2x है इट इक्वल्स y. आगे फर्दर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस CXHY का 1 मोल हमें इतनी ऑक्सीजन देता है, यानी कि ये ZO एटम देगा, हमें ZO के एटम देगा. तो ये इतनी ऑक्सीजन है जितनी हमें चाहिए CXHY के कंप्लीट कंबशन के लिए, उसकी आधी वैल्यू हमें देता है, राइट. तो देखो CXHY का जब कंबशन होगा O2 के साथ होगा, O2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी? CO2 की और साथ में H2O की. तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर O2 के एटम हमने O2 के कितने मोल यूज़ करे हैं. तो एक इक्वेशन, इसको एक सिंपल रिएक्शन के साथ कंपेयर कर लो कि CH4 प्लस O2 हमें देता है CO2 और साथ में 2H2O, तो ये हो जाएगा 2O2. तो इस तरीके से बैलेंस्ड इक्वेशन है. यानी कि देखो यहाँ पर CH4 में 1 कार्बन था, तो 1 कार्बन से हमें 1 CO2 मिली है. तो अगर इस फॉर्मूला में X यहाँ पर C के एटम है, तो CO2 हमें कितनी मिलेगी? X ऑफ CO2. अब फर्दर देखो, नेक्स्ट ऑक्सीजन में इसमें है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है.
ये 4 हाइड्रोजन से 2 पानी के मॉलिक्यूल मिले हैं, तो इन्होंने ऑक्सीजन कितनी यूज़ करी है, 2 ऑक्सीजन के एटम यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन के एटम को 2 ऑक्सीजन चाहिए, 2 ऑक्सीजन के एटम चाहिए। तो एक हाइड्रोजन को कितना चाहिए होगा, 2/4O, यानी कि हाफ ऑफ O चाहिए। तो जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है CXHY, इसमें हाइड्रोजन कितनी है, Y। तो अगर एक के लिए हमें हाफ O चाहिए, तो Y के लिए यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन लगी होगी, बेसिकली Y/2। तो H2O का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, Y/2। अब हमें चाहिए होगा LHS की तरफ जो O2 है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट चाहिए होगा। तो देखो, अब एक अगर हमारे पास O2 है तो इससे हमें 2 O मिलते हैं। ठीक है, यानी कि जो अगर Y/2O है तो ये कितने O2 से मिलेगा, Y/4 O2 से मिलेगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जाएगा वो होता है X + Y/4। तो जो ओवरऑल इक्वेशन होगी इसके कंबशन की वो जाती है CXHY प्लस में X + Y/4, इतनी O2 चाहिए, ये हमें देगा XCO2 और साथ में Y/2 H2O। नाउ क्वेश्चन में फर्दर लिखा था कि CXHYOZ जो है, CXHYOZ, तो इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम है हमारे पास, Z एटम्स ऑफ O। तो इसने कहा था कि इसका एक मॉलिक्यूल हमें इतनी ऑक्सीजन देता है जितनी हमें इस CXHY के कंबशन के लिए चाहिए, उसकी हाफ। तो CXHY के कंबशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो फॉर कंबशन O2 रिक्वायरमेंट इज X + H/4। लेकिन फॉर्मूला में तो O एटम है, तो एटम कितने चाहिए होंगे ऑक्सीजन के, तो O की रिक्वायरमेंट कितनी आ जाती है, यहाँ से बेसिकली डबल हो जाएगी X + Y/4 × 2 विच इक्वल्स टू 2X + Y/2। तो देखो, ये है इतने हमें ऑक्सीजन के एटम्स चाहिए उसके कंबशन के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो Z की वैल्यू है वो इसकी हाफ हो गई, इस ऑक्सीजन के एटम की जो रिक्वायरमेंट है उसकी हाफ कितना है हमारे पास, Z। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा कि जो Z है इट इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2X + Y/2। तो Z की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, X प्लस में Y/4। तो ये Z की वैल्यू है। हमारे पास एक रिलेशन है Z की X और Y के साथ, एक रिलेशन इससे पहले आई थी X की Y के साथ कि 2X = Y। तो अब हम Z को क्या करेंगे, X के टर्म्स में लिख लेंगे। तो Z = X + 2X/4। तो ये कितना आ जाता है, X प्लस में X/2 विच इक्वल्स टू 3X/2, यानी कि Z = 3X/2। तो अब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्योंकि सभी एक टर्म्स में है हमारे पास। ठीक है, तो देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा CXHYOZ का, तो हमें इसके लिए X, Y और Z के बीच में रेशियो चाहिए होगी। तो X इज X, Y किसके बराबर है, 2X के, और Z किसके बराबर है, 3X/2 के। तो जो यहाँ से आएगा हमारे पास, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज 2X, 4X एंड 3X। तो X से X गया तो रेशियो कितनी आती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, 2:4:3। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, C2H4O3। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H4O3। तो जो गिवन ऑप्शन है वो सारे के सारे गलत हैं, कोई भी सही नहीं है, सब में गड़बड़ है। बट जो फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन का, दैट विल बी C2H4O3। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एन एल्कली इज, एक एल्कली है जो टाइट्रेटेड करी गई है अगेंस्ट एन एसिड विद मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो वीक ऑर्गेनिक बेस है। सबसे पहले अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं तो मिथाइल ऑरेंज हमारे पास क्या है, वीक ऑर्गेनिक बेस।
क्लियर। अब इसके बाद में रिएक्शन क्या होती है, कौन सा कलर कहाँ से चेंज होता है, फाइनल कॉम्बिनेशन के ड्यूरिंग क्या स्टेप आता है, तो ये टाइट्रेशन में यूज करा जाता है। किसके टाइट्रेशन में, वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज खुद क्या है, एक वीक ऑर्गेनिक बेस है। तो ये किसके टाइट्रेशन में यूज करा जाता है, ये टाइट्रेशन में यूज करा जाता है वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो अब ऑप्शंस में हम देखेंगे कि वीक बेस में कौन कौन से ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है सेकंड वाला, और एक फोर्थ वाला है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये तो हमारे कैंसिल हो गए कि स्ट्रॉन्ग बेस वाला, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया और थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हमें चेक करना है किस किस के बीच में, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि हमारा जो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं वो सेकंड या फोर्थ से मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं मिथाइल ऑरेंज इसकी रिएक्शन करवाते हूँ तो ये किस तरीके से डिसोसिएट होता है, वीक बेस है। अब बेस है तो हमें क्या मिलेगा, OH नेगेटिव, और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइजेशन तो होता नहीं है उसका, क्योंकि वो वीक बेस है। तो अब हमें यहाँ से कौन सी स्पीसीज मिलेगी, Me पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि ये वीक है। ठीक है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म है ये, जब ये मिथाइल ऑरेंज, ये कौन से कलर का होता है, येलो। क्लियर, और जब ये Me पॉजिटिव में टूट जाता है तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म है इसकी, और ये कौन से फॉर्म में होता है, रेड कलर में। क्लियर, तो बेसिक मीडियम की अगर हम बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कौन से साइड में रहता है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करती हूँ, इन बेसिक मीडियम इक्विलिब्रियम लाइज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बेसिक मीडियम OH नेगेटिव, इसके आयंस बढ़ते हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट होगा। अगर इसके आयंस बढ़ते हैं OH नेगेटिव के, तो लीच टेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, इक्विलिब्रियम को किधर शिफ्ट कराना होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में हम कहेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम लाइज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में लाई करता है तो कलर में कौन सा चेंज आएगा, तो कलर चेंज करेगा हमें येलो कलर, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में MeOH की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये, और कौन से कलर में, येलो कलर में। क्लियर, और अगर एसिडिक मीडियम की हम बात करते हैं, इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, H पॉजिटिव आयंस की, और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन घट जाएगी। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। अगर ये कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो जो इक्विलिब्रियम है हमारा, इक्विलिब्रियम कौन से साइड शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर शिफ्ट होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सा कलर देता है, ये आयोनाइज्ड फॉर्म में रेड कलर। तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में हमें मिलेगा रेड कलर, और बेसिक मीडियम में हमें मिलेगा येलो कलर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शंस किस किस में चेक करने थे हमें, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ। तो सेकंड में है कलरलेस टू पिंक, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। येलो टू पिंकिश रेड, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि अभी हमने चेक करा है अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट होता है तो इधर येलो कलर आएगा, और अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होता है तो रेड कलर आएगा। और फॉरवर्ड में कब शिफ्ट होगा, जब बेसिक आयंस की कंसंट्रेशन घटेगी, यानी कि एसिडिक मीडियम होगा। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, फोर्थ। थैंक यू।